Very good morning, all of you. Today we will start the first chapter as a find command. So by using find command, we can perform different types of operation. So first of all, we will learn theoretical part, and after that theoretical part, we will start the practical. Find command is the most important command which is used to find the file, which is used to find the directory, which is used to find the files and directory with permission, with groups, with size. So by using that, we can easily find the file. Okay. If you want to find a file using some permissions, also we can easily find out. So today we'll learn some theoretical part, and after that we'll start the practical. The Linux find command is one of the most important and frequently used command line utility in Unix like operating system. Find command is used to search and locate the list of files and directories. List of files and directories based on the condition you specify for that match arguments. आपको condition देना है. By using that, we can easily find the file. In a previous session, we already learned about grep command. Grep command is used for only file related operation. If you want to search the content of file, starting content, ending content, if you want to find ignorance case, only case, or number case, then we can use a grep command. That means what? If you want to find a file content or file related operation, we will use grep command. In similar way, find command is available. Find command is used to find the file also, and it will use to find the directory also. Okay, so if you want to find a directory and file in whole system, current directory, root directory, partition directory, we can easily use to find. How will find that? Find can be used a variety of condition, like you can find files by permission. That means by using permission we can easily find the find, by using username, by using groups, by using file type, whether it is a .txt, whether it is a .php, by using date, by using size. So we can find the file by using this attribute. Basic find commands for find files with names. Okay, basic find command कैसे work होता है? We'll do it. The first option is, here is the first option. We need to use a find. So before that, we'll use, what is a find? We'll check out what is a find by using a man command. Yeah, now man find. Why we use find? Find is used for search for a files in directory hierarchy. Okay, ये क्या करता है? File search करता है. It will search a directory. Okay, directory and files will be searched in the directory hierarchy. Okay, so इसके लिए file find command use it. What is the basic way to find the command? So here I will use find. Here I will press a dot. Dot represents current directory. Where are we? PWD, प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी कौन सा है हमारा? स्लैश होम स्लैश अरबी. सो जब भी मैं ऐसा यूज करता हूँ find dot, that means it will search in the current directory. So what is your current directory name? Slash home slash arvind. Okay, so this one is your source. Dot is nothing but your source. After that, here we need to specify the attribute. यहाँ आपको क्या करना है? Attribute specify करना है. Here we need to pass the attribute name as name. Okay, hyphen name. So by using name you can find the file, and after that we need to provide the file name. I don't know about that, whether the arvind.txt is available. We'll check out. Yeah, the file is available. स्लैश अरविंद डॉट टी एक्स टी, मतलब पार्टीशन पे भी ये फाइल अवेलेबल है, एंड इन द फोल्ड और डेस्कटॉप स्लैश अरविंद डॉट टी एक्स टी. दैट मीन्स ये फाइल अवेलेबल है. यस वी हैव. So here we will do one thing. We'll create one more file, touch xyz.txt, and I will create one more, and in that I will use capital X. Yeah, done. Now ये मुझे files find करना है. So what should I do? I will use find dot current directory hyphen name attribute, and after that
file name as a xyz.txt. Okay, these two files are different. Okay, इसमें मैंने स्मॉलर केस यूज किया है, इसमें मैंने कैमल केस यूज किया है. ओके, फर्स्ट लेटर इज है कैमेटर. ओके, सो ये केस सेंसिटिव होता है. when we trying to find out smaller xyz.txt, then it will generate only smaller xyz file. Okay, see, ये क्या फाइंड किया है इसने, स्मॉलर xyz.txt. now here I will try a capital X. Here I will use capital X. Now it will be visible only capital XYZ. Okay, अब ऐसा करना है. Now I want to find out, see, one by one we'll do it. Now we need to find out in directory, find a file in directory. Okay, in file in a directory, particular directory, a particular directory पे मुझे find out. We'll go for one by one steps. Okay, similarly आपको easily understand होगा by using this notes. It is very useful for you, and that's why I created. Just follow the notes. Now I want to find out second step. First step is completed, having a name. I want to find a file. Now similar way I will find out a directory having a same directory. Okay, same current directory से मुझे क्या करना है, directory find out करना है. So let's do one thing. Here I will create one directory, uh, big data. Okay, so now I want to find out that directory. So what should I do? Here I will use find dot hyphen name, and the name of file is big data. It is a directory. Okay, now check out that file is available. So look like this way we can find the file also and the directory also. But what is your source path? Your source path is current directory. That dot indicates current directory. आपको देना है तो आप source में आप additional directory भी दे सकते हैं, or we can also use the dot as a current directory. Okay, let's do one thing. Here I will create slash, and here I will make a directory sudo mkdir, and here I will create a big data directory. Big data. Now done. I have created that directory. Now third step, find file in particular directory. अब आपको क्या करना है? We need to pass a particular file path. Okay, so here I will use find slash source path. Here we need to provide a source path. Here where you want to search, I want to search on partition slash. Okay, after that what will be the parameter? Here we have parameter as a name, and the name of file big data, and permission denied. We need to pass a sudo command for the partition पे सर्च करना है तो sudo command लगेगा. Yeah, done. Super user command. See, big data file is available on partition. यहाँ स्लैश दिखाई दे रहा है आपको, ये पार्टीशन पे अवेलेबल. also big data file is available in the arvind directory. What does it mean? Here we are passing a slash. Okay, that means source path. हम यहाँ क्या पास कर रहे हैं, source path पास कर रहे हैं instead of current directory. So by using that we can also do the find command. See, we have written 3 commands. First one, finding a file in same current directory. Okay, finding a directory in same current directory, and third, find the file in a particular directory, like find source hyphen name attribute, and after that name of file. See, like that, find slash home arvind space hyphen name attribute, and the name of file is, you will get output. Okay, so here we will get output. So dot txt is also available. We'll check out home arvind dot txt is available. Home arvind desktop arvind dot txt is
available. Likewise, we can find the file. So this is the simple way to find out the file. Okay. अब ये by using name attribute से क्या होता है कि आप फाइल भी फाइंड आउट कर सकते हैं एज वेल एज डायरेक्टरी भी फाइंड आउट कर सकते हैं. दिस इज अ वेरी बेसिक सिंपल वे to find out the file as well as directory. It is a very simple way to find out. Now we will find in particular way. Okay. अब हमें पर्टिकुलर वे से फाइंड आउट करना है. विल चेक आउट. हम चेक करते हैं. Second, find the files in ignorance case. Ignorance case, we in last lecture we already discussed case sensitivity. Okay, alphabets, smaller case and upper case. That means case sensitive. अगर case sensitivity remove करना है, just we need to find path smaller. Okay, so case sensitivity से कैसे remove करना है? See, just we need to press hyphen I. So for that, here I will use find current directory. After that, the attribute name is name. Okay. और मुझे क्या find करना है? I want to find xyz.txt, which is earlier created. Okay. So here instead of name, here I will pass iname. Ignore name. That means case sensitivity क्या होगा? Remove हो जाएगा. So in that case, capital and small जितने भी XYZ नाम है, whether it is a camel case, whether it is a smaller case, whether it is a capital case. Okay. Before that, we will do one thing. Uh, Here I will use it root directory ls present working directory. Yeah, done. So here I will create one more file t touch capital xyz dot txt. Now we'll perform the operation find dot hyphen iname and the file name is xyz dot txt. So in the previous part we already created the file having name capital xyz, uh, smaller xyz and camel case xyz. Now we'll get three files. See, we'll get three files: small xyz.txt, camel case xyz.txt, and capital xyz. When we remove this I, then it will find only particular file. जब मैं आई रिमूव करता हूँ तो ये पर्टिकुलर एक ही फाइल फाइंड करेगा, ये मैच करेगा, पैटर्न रिकग्नाइजेशन करेगा एंड इट विल फाइंड. जस्ट आप इग्नोरेंस केस प्रेस करते हैं देन इट विल फाइंड ऑल द फाइल्स. इज इट ओके? समझ में आ रहा है प्रतीक? यस सर. या ग्रेट. सो कुछ डाउट आता है तो आप पूछ सकते हो. ओके. Now ignorance case be done. Now the find a directory using name. अब मुझे क्या करना है? Directory find करना है using name. See, अभी तक हमने क्या किया था कि particular file find out किया था या particular directory find किया था by using hyphen name option or iname option. Now we need to find out the directory only, मतलब type as a directory. Okay, so here I will use sudo find. Sudo why we use? Because I want to access a slash. If you don't want to access a partition, root directory partition, then there is no need to use a sudo. Find slash hyphen type. This one is another attribute, and here we need to provide a type as a directory. If it is file, then press F. If it is a directory, then press D. After that, name attribute or iname. If it is iname, then it will ignore the name. If it is a name only, then it will match only pattern. Okay. If we are giving a smaller case, then it will find only smaller case. If we are giving a capital case, then it will find the capital case, like that. So here I will provide hyphen name and I will enter PESCOE as a name. Okay, when we press ignorance case, then it will print capital as well as smaller directory. अब जितने भी directory आपके पास available है ये पूरे के पूरे दिखाई देगा. सी स्लैश पे PSUE अवेलेबल है, स्लैश होम PSUE अवेलेबल है. हाँ, थ्रैश में कैपिटल PSUE अवेलेबल है, थ्रैश में लोकल शेयर, थ्रैश में PSUE अवेलेबल. So simply अगर directory find out करना है तो this is a simple way to find out the directory.
Just we need to do one thing. So let's do one more thing. Here we'll create directories. Mkdir test. Yeah, done. Mkdir capital test. Mkdir small test. Now file already exists. Okay, no issue. Now we'll find out the directory. Find slash, रूट डायरेक्टरी में फाइंड करना है तो आपको sudo देना है. जस्ट आई डोंट वांट टू फाइंड द रूट डायरेक्टरी. फाइंड, कहाँ फाइंड करना है आपको? करंट डायरेक्टरी में. व्हाट विल बी द टाइप ऑफ योर file? Type is a directory hyphen iname and the name of file is test. आई नेम दिया है तो टेस्ट से के सेंसिटिविटी चला जाएगा. स्मॉलर टेस्ट, कैपिटल टेस्ट, वोटर इट में भी जितने भी टेस्ट अवेलेबल है एज अ डायरेक्टरी. यहाँ पास मैंने डी किया है, दैट मीन्स इट विल फाइंड ओनली डायरेक्टरी. ओके, ये फाइल नहीं फाइंड करेगा, ये फाइल फाइंड आउट नहीं करेगा. नाउ चेकआउट. सी, टेस्ट, कैपिटल टेस्ट, कैमल केस टेस्ट एंड दिस टेस्ट, अपर केस टेस्ट विल फाइंड आउट. ये टेस्ट वन के अंदर भी टेस्ट अवेलेबल. सो जितने भी डायरेक्टरीज है ये पूरे के पूरे फाइंड आउट करेगा. ओके, सो दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग अ फाइंड कमांड. इसके लिए हम क्या कर रहे हैं? फाइंड कमांड यूज कर रहे हैं. when we press the partition over here, so here we need to use a sudo. Now we'll get the full information about that. Okay, see in the top of that we'll get home arvin test is available, home arvin test is available, camel case, and this one is a full capital case test is available. That means what does it mean? If you want to find a directory having a type, so जैसे मैंने टॉप में देख बोला था आपको, जैसे फाइंड करना है आपको बाय यूजिंग परमिशंस फाइंड कर सकते हैं, बाय यूजिंग टाइप फाइंड कर सकते हैं, बाय यूजिंग नेम फाइंड कर सकते हैं. So it is a more and more useful utility in Linux, so which is used to find the files and directory having a different attribute like a hyphen name, hyphen type, hyphen permission, perm. So by using these attributes we can easily find the file. Here find the file using name. अभी ये file find करना है by using name. So same command we will use. Here we will use find. Okay, where you want to find, आपको कहाँ पॉइंट करना है? डॉट करंट डायरेक्टरी hyphen type. Here type as a file. In the previous part, in the previous command, we pass a D as a directory. Now we'll find the file. What will be the name of that file? What do you want? I want tar.odt file. मुझे tar.odt नाम की फाइल फाइंड आउट करना है. फाइल है क्या? यस, इट इज एन पीडीएफ फाइल. ओके, सो इट इज एन टेक्स्ट वर्डप्रेस फाइल. सो इजीली इट विल बी available. Now see, desktop के अंदर tar.odt available. Can I able to find a file as a pdf? Yes, you will get the pdf file also. अगर अवेलेबल होगा तो ही दिखाई देगा, अदरवाइज नहीं दिखाई देगा. So now we can easily able to find the file format. Similarly directory find करना है, just we need to press a D and ये करना है तो F file pass करना है. Okay, so now here I will pass I ignorance and I will remove the extension. Now check out, no file, no tar extension file is available. Dot tar dot odt is available. Odt, yeah, odt is only available. So like आपको यहाँ परफॉर्म करना है ignorance केस में, then just write axyz.txt. We already created that file. We'll get these three files. ये आपको थ्री फाइल्स मिल जाएगी. just when you press the partition get restrictions because sudo user permission denied. Yeah, see, we'll get these three files. ये हमें तीन फाइल्स यहाँ मिल गए. सो पर्टिकुलर फाइल फाइल करना है. सो यहाँ हमने पढ़ा क्या है, कौन सा एट्रीब्यूट पढ़ा है? फर्स्ट वन वी लर्न नेम एट्रीब्यूट एंड सेकेंड वी लर्न अबाउट टाइप एट्रीब्यूट. So in the type attribute, we need to specify whether it is a file, whether it is a directory, and after that we need to pass a name attribute to find out that. ये याद रखना है आपको ऐसे steps one by one.
Now find PHP file. If you want to find a particular files, then easily we can find. Just we need to provide the file. Okay. So dot all करने से ये पूरे PHP we already seen that. Yeah, previous section में हमने देखा था कि star dot PHP मतलब जैसे भी जितने भी एक्सटेंस है, स्टार मतलब वॉटर इट में भी जो भी नाम रहेगा चलेगा, बट डॉट PHP एक्सटेंशन सिमिलर होना चाहिए. सो सेम हम पास कर सकते हैं. Okay, I will do that. Sudo find slash partition पे hyphen type as a file and name as double quote here pass whatever it may be name, but extension must be PHP. Extension must be. Now check out pcure.php, index.php, abc.php, sql.php, like that all the files. अगर आपको वही आपको PDF फाइल Hello, sir.
हॅलो, आता येतोय आवाज माझा? Yes, Yes, sir. sir. ओके. लास्ट आपण Yes, sir. काय पाहिलं लास्ट मध्ये? जोपर्यंत तुम्हाला माझा आवाज आला तोपर्यंत काय पाहिलं? हॅलो. सर ते तुम्ही फाईलचं सांगत होते की नाव काही असलं तरी .php पाहिजे त्याला. ओके. .php पीडीएफचं नाही पाहिलं ना तुम्ही? पीडीएफ सर सांगितलं होतं ना तुम्ही पीडीएफ सर्च करू शकतो म्हणून. ओके. प्रॅक्टिकल करून दाखवलं होतं? पीडीएफचं प्रॅक्टिकल नाही सर. PHP वरच होतं फक्त. ठीक आहे. जस्ट 1 मिनिट. हे हँग होते का? आय डोंट नो अबाउट दॅट. इवन राईट नाउ स्टिल इथं स्टक झालेला आहे. आवाज तर येतोय ना माझा? येस सर. Yes, sir. मे बी नेटवर्कचा इश्यू आहे वाटतं. सर
आवाज येतोय माझा आता? Yes, sir. ओके. स्क्रीन शेअर करून पाहतो. स्क्रीन शेअर झाली माझी. Yes, sir. Yes, sir. इज इट विजिबल? कमांड्स कोणतं काय चालू होतं आपलं? फाइंड ना. या फाइंड PDF about PHP files. So and I will start recording also. Yeah, done. It's recording also started. Now, uh, yeah. ओके. सो हम इसके बारे में डिस्कस कर रहे थे, PHP फाइल्स के बारे में. इफ यू वांट टू फाइंड अ PHP फाइल्स, so we can easily able to find out that. Similar way, extension whatever it, आपको एक्सटेंशन वॉट नेम वॉट एवर इट मे बी, बट एक्सटेंशन PHP ही चाहिए. ओके. सो जैसे sudo file, I want to find a file partition, and my type is a file, so hyphen type, the format is file, and the name is given. Okay. So in that I want to find out dot PDF extension. Okay. जैसे हमने PHP का देखा है अभी, PHP के पूरे फाइल्स क्या होते थे, लिस्ट आउट होते थे. लाइकवाइज आई वांट टू फाइंड आउट द PDF फाइल्स. विल चेक आउट. Permission denied. Okay, we'll do it as a home. Password में भी गलत हुआ था. From Arvind. Here will PDF. No, where I am present working directory. Home Arvind. Okay. So find on slash home only. Slash home only. And that my type is I type typ. Type is file. Okay. Type is file having attribute and star dot PDF file. Yeah, it's a Linux monitoring resources use code.pdf, tar PDF, file ownership.pdf, operation directory, Linux htop.pdf, vi.pdf, ps.pdf, Mozilla, and find.pdf. Also, okay. Now we'll do one thing. Find out the file having a permission 777. First of all, we need to check whether we have a file. Assume that we don't have a file right now. We'll use desktop. In that we'll use check ls. So in that we'll follow cron job dir. We will provide a permission for that. Super sudo ch 777, and the name of file is cron job dir. Done. Now we'll check ls hyphen l, and here we have permission 77777. Now we can easily find out that file. So find, having a permission, find in current directory hyphen type as a d directory. Oh sorry, here type is a file, so I will use directory because हमने directory को किया है, and hyphen name
After that, attribute perm permissions. 0 is a starting bit, and after that we need to pass three conditions, and after that we'll print that. Okay, print नहीं करते हो तो execute हो जाएगा but display नहीं होगा. So for that, we need to use print option, hyphen print. See, no for the expressions. Okay, path must be explicitly for the permission. So here provide slash home Arvin. Now we'll get the output. No, so just 1 minute. I will do time flash home slash in hyphen type, and the type name is a directory hyphen options 0777 and hyphen print. Yeah, here we get out home slash desktop. In that there is a folder called as a cron job dir. उसकी permissions कितना है 777. So like that, अगर आपको find out करना है तो हम ऐसे find out कर सकते हैं. See, you will replace that permission 755. No, just one chmod. Where is the chmod, and here we will provide 5. Now again we'll find out that type. Here we'll use only 775. Same, find hash slash home slash admin slash desktop hyphen type d directory hyphen permissions perm. After that 0775 and print. Again Linux nodes को भी वही permission है and cron job debugger को भी permission. That means what, simply we can able to find out the files having permissions only. परमिशन से भी फाइंड आउट हो सकते हैं. अब यहाँ हम ऐसा भी कर सकते हैं कि जैसे यहाँ मैंने 777 लिखा है और इसके आगे मैंने जस्ट एक नॉट यूज किया है, इंस्टेड ऑफ दैट नॉट सिंबल. सो सी, लिनक्स में लॉजिकल ऑपरेटर्स वर्क होते हैं. दैट मीन्स नॉट 777. ओके, ऐसा मीनिंग हो जाएगा उसका. नॉट 77 सी फाइंड फाइल्स विदाउट 7777. तो हमें फाइल्स फाइंड आउट करने हैं, डायरेक्टरी फाइंड आउट करना है विदाउट 77, जिसको फुल परमिशंस नहीं है. जस्ट वी नीड टू रिप्लेस अ नॉट. ओके, negation operator in C language we already learn about that. Not is a reverse of giver. Okay, if we have a true then we'll get false. हम अब नॉट लगाते हैं किसी के आगे तो if we have false then we will get true. So same things है. So यहाँ मैंने नॉट लगाया है d के बाद में. So we'll get directories. सो ये जो डायरेक्टरी है PQ और PQR लिनक्स नोड्स cron job dir per dir opr, सो इनको फुल परमिशन नहीं है. दैट मीन्स 777 परमिशन इनके पास नहीं है. इसकी वजह से ये फाइल्स फाइंड आउट, मतलब रिवर्स ऑर्डर से भी कर सकते हैं और आइदर वी कैन आल्सो यूज अनदर वे. ओके, सो डिफरेंट वे से भी यूज कर सकते हैं. सो सेम थिंग, बाय यूजिंग परमिशन वी कैन एबल टू फाइंड आउट द फाइल्स. नाउ रीड ओनली मोड में फाइंड करना है, जैसे ओनली रीड फाइल है, रीड की परमिशंस है तो आपको फाइंड फाइल करना है तो आप ये कर सकते हो. बट नाउ व्हेन वी परफॉर्म दिस ऑपरेशन यू विल गेट लॉट्स ऑफ फाइल्स. सो ये आप डायरेक्टली आपके पीसी पे परफॉर्म करो, बिकॉज मैक्सिमम फाइल लिनक्स के अंदर क्या होते हैं, जो यूजर सिस्टम डिफाइंड फाइल होते हैं वो रीड ओनली फाइल होते हैं. सो बल्क फाइल में आपको दिखाई देगा. इफ यू वांट टू चेक तो मैं आपको दिखा सकता हूँ यहाँ sudo find slash hyper permissions slash user permission is equals to read. No command sudo spell mistake. ब्लिंक हो रहा है, ये रीड फाइल्स अवेलेबल और ये सिस्टम डिफाइंड फाइल्स. सो आपको ऐसे रीड राइट एग्जीक्यूट ऐसे फाइल्स फाइंड आउट करना है तो वी कैन परफॉर्म. जस्ट वी नीड टू प्रोवाइड इंस्टेड ऑफ रीड राइट एग्जीक्यूट. आपको इसके आगे
फाइंड आउट करना है. नाउ empty files, if you want to find the empty files, then we can attribute called as a empty. जैसे हम hyphen name यूज करते थे, hyphen p यूज करते थे, then we can easily use empty also. How will do that? Just we need to use find slash home slash, एक ही फोल्डर के अंदर करते हैं हम, अरविंद के अंदर hyphen type and file format is a file, and after that empty. So in that f place we can also use a directory भी हम use कर सकते हैं. Yeah, that's it. These are the empty files we have. इतने सारे हमारे पास empty files available हमने क्रिएट किए थे. ओके, जैसे भी आप उसको रिप्लेस करके डी करते हो तो ये empty directory दिखाएगा. directory available. पर्टिकुलर कर आपको ज़्यादा समझ में आएगा. इंस्टेड ऑफ अरविंद हियर आई विल पास desktop. So we have two empty directories, pqr cron, and same thing में अगर मैं पर्टिकुलर डेस्कटॉप के अंदर फाइल सर्च करता हूँ, इतने फाइल्स हमारे पास empty है. arvind dot txt xyz con and file. ओके, सो empty फाइल से भी हम यूजफुल कमांड है. find command is very much useful. Find all empty directories, find hidden files. hidden files we already discussed. ls hyphen a से हम hidden files देख सकते हैं जो डॉट डॉट होते हैं. एंड एक्चुअली hidden फाइल देखना है तो आपको होम डायरेक्टरी में जाना चाहिए, वहाँ आपकी hidden फाइल्स अवेलेबल है. ls करके देखो, के अंदर आपको सॉरी cd डॉट डॉट यहाँ बहुत डायरेक्टरीज है. हियर आई विल यूज SCCSC. हम SCCSC का वर्किंग डायरेक्टरी देखेंगे ना. इट्स ओके. ls we have only one file. If you want to check the hidden files, ls hyphen a. ls hyphen a से हम hidden files see. All these are files are hidden files. Okay. So similarly by using command अगर hidden file आपको search करना है तो बहुत easy है. sudo find, after that we need to pass provide a path home slash SECSC, ये होम डायरेक्टरी है, उसके अंदर का हम फाइल चेक करते हैं. hyphen type as a file and hyphen name attribute that double quote star sorry dot star. नेम कुछ भी रहेगा तो चलेगा, डॉट कंपल्सरी होना चाहिए. ओके, सी दीज आर द हिडन फाइल्स. डॉट बैश हिस्ट्री, जिसके आगे भी डॉट होता है ना वो कंपल्सरी हिडन फाइल, मैंडेटरी. ओके, डॉट प्रोफाइल. So by using this we can also use find hidden files. Find all file based on user related find करना है आपको तो हम user related files भी find कर सकते हैं. How will find out the user related file? So cd dot cd dot cd my working directory. Now here I will use find, where you want to find home slash SCCSC. अब SCCSC देखते हैं क्योंकि SCCSC के अंदर फाइल्स कम है इसकी वजह से. ओके, home SCCSC. Yeah, we can say that just I want to find home directory and here I will pass user and username as SCCSC. ओके, सो SCCSC से रिलेटेड जितने भी फाइल्स है ये डिस्प्ले हो जाएंगे. फॉर एग्जांपल एक मेरे पास यूज़र है जिसमें बहुत सा डेटा है, विल गेट अलर्ट रिलेटेड, उसके अंदर हुआ है तो उसके जितने भी फाइल्स है इंपॉर्टेंट वो पूरी की पूरी आपको डिस्प्ले हो जाएगा. वेदर इट इज़ अ PDF PHP वॉटर इट में भी जितने भी फाइल्स है वो यूजर्स के पूरे पूरे डिस्प्ले हो जाएगा. दैट्स वाई हियर आई गिवन अ यूजर नेम एज अ SCCSC. तो इसके कम फाइल्स है तो कम ही फाइल दिखाएगा. ओके, नाउ दिस इज ओवरऑल अबाउट फाइंड. 5 मिनट्स में हम सेशन लेंगे कि कुछ क्यूरी है क्या, आफ्टर दैट विल स्टार्ट द नेक्स्ट. ओके, वी नीड टू कंप्लीट मोर सिलेबस. डज एनी टाइप ऑफ क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चंस है रिगार्डिंग फाइंड कमांड? एनीवन? केश
No, sir, nothing. Om. No, sir. Okay, great. Now we'll do one more thing. अब हम next PDF की तरफ चलते हैं. मैं पहले ही बना के रख एंड इसके लिए आपको प्रैक्टिकल करना भी इजी जाएगा एंड रिकॉर्डिंग आल्सो अवेलेबल. सो इसके अंदर अब आप पढ़ते हैं PS कमांड. ये सो प्रोसेस कमांड. अभी ये बट मस्ट आपको पता होना चाहिए. बिंग अ लिनक्स और बिंग अ सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर ये आपको पता ही होना चाहिए. ओके. सो व्हाट इज अ प्रोसेस स्टेटस PS कमांड. सो इसके अंदर हम क्या करेंगे, लिनक्स लेवल मॉनिटरिंग करना है. इफ यू वांट टू मॉनिटर एट लिनक्स लेवल मॉनिटरिंग करना है, फॉर एग्जांपल क्या करता है anyway, then we need to handle the PS command and htop top command. Okay, these are the three ways by we can monitor the our resources अगर monitor करना है. For example, what are the resources we have? We have RAM, random access memory. We have storage space, we have users. So such a type of information, resource manager, VM virtual machine होता है या virtual memory होता है, input output होता है. So like that stuff, if you want to manage the resources, we need to handle PS command, top command and htop command. These are the three important commands. Okay, what is the PS? PS stands for the processor status. Okay, what are the processes? Processes is a nothing but task. Okay, a group प्रोसेस मेड अ वन टास्क. एक ग्रुप ऑफ प्रोसेस क्या कर सकते हैं, एक टास्क क्रिएट कर सकते हैं. सो PS स्टेटस इज अ नेटिव यूनिक्स लिनक्स viewing the information concerning a selection of running process on system. कौन से प्रोसेस रन है, ओके उसकी इंफॉर्मेशन अगर तो आपको PS कमांड यूज करना है. It read this information from the virtual files slash proc file system. We already seen slash partition स्लैश में हमने डायरेक्टरी हियरार्ची में देखा था प्रॉक. सो इसके अंदर पूरे के पूरे कर्नल की इंफॉर्मेशन रहती है. इट इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूटिलिटी फॉर द सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर स्पेसिफिकली अंडर द प्रोसेस ऑफ मॉनिटरिंग द रिसोर्सेस ओनली. ही मॉनिटर करता है, अदर टास्क मॉनिटर नहीं करता. टू हेल्प यू अंडरस्टैंड व्हाट इज गोइंग ऑन लिनक्स सिस्टम. लिनक्स सिस्टम पे क्या हो, आई हैव 8 GB ऑफ रैम. अमंग दैट कितनी GB मेरे वेस्टेज है, कितनी मेरी में मेरे यूज हो रही है, कितनी मेरी स्टिल हो रही है, मेरे स्वैप में से यूज हो रही है. सो लाइक दैट इंफॉर्मेशन. सो PS कमांड विदाउट एनी आर्ग्यूमेंट इट विल डिस्प्ले द प्रोसेस ऑफ द करेक्ट शेप. जो भी एक्टिव है उसकी इंफॉर्मेशन आपको दिखाए, इन एक्टिव का नहीं दिखा पाएगा. ओके. सो हियर इज अ टर्मिनल. Processes test states PS. So see, we have bash shell and एक बैश शेल हमने स्टार्ट किया था और दूसरा PS कमांड स्टार्ट. ये दोनों ही राइट नाउ एक्टिव है. ओके, टर्मिनल एक एक्टिव है एंड सेकंड ये PS प्रोसेस ये एक एक्टिव है. दोनों ही एक्टिव है, दैट्स व्हाई इसने इंफॉर्मेशन ये दिखा है. ओके. PS command without any argument it will display the process of the current shell only. और वो जो एक्टिव होती है वही दिखाई देता है. नाउ अब ये PS के साथ में एडिशनल एट्रीब्यूट्स दिए और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत हेवी है, बट मैंने कुछ ही सिलेक्ट किए हैं जो आपको बहुत यूजफुल है. ओके, बहुत ही यूजफुल है एंड रिपीटेडली आप यूज कर सकते हो उसको, और मैक्सिमम जगह लिनक्स एडमिनिस्ट्रेटर में यही कमांड यूज होते हैं. So PS-E, that means it display every active process on the Linux system in generic as well as in Unix platform और Linux platform. दो both format में जो भी आपके active processes ये आपको दिखाई देगा. ओके, एक्टिव मीन्स क्या होता है कि ये ऑलरेडी रन हो चुके हैं और ये करंटली एक्टिव है, बट राइट नाउ ये स्टॉप हो चुके हैं. विल चेक आउट कैसे करना है. PS हाइपन जस्ट वी नीड टू प्रोवाइड ई ऑप्शन. ओके, सो पूरी
इसने दिखा दिया। जैसे सिस्टम आप बूट करते हो तब से आपके कौन से प्रोसेस रन हुए ये पूरी इंफॉर्मेशन आपको दिखा देता है। सी these are the PID, first one part. Well, check out. See, these are the PID, process ID. After that, terminal TT, ये कौन से टाइम पे हुआ था और कौन सी कमांड एग्जीक्यूट हुई थी। जैसे भी सिस्टम बूट हुआ था एट द फर्स्ट सेकंड सिस्टम जे एम वो एग्जीक्यूट होता है, उसके बाद में कर्नल थ्रेड एग्जीक्यूट हुआ था। सो ये ऐसे पूरी इंफॉर्मेशन आपको दिखाई देती है जो भी एक्टिव थे उनकी 180 प्रोसेसेस हुए। बट अब ये फॉर्मेट अगर देखा आपने तो ये फॉर्मेट में अगर आपको एक्चुअल चेक करना है तो वी नीड टू पास एफ। इस पर आपको प्रोसेस आईडी बाय टाइम एंड कमांड दिखाएगा। जैसे हम नेक्स्ट करते हैं, सी एफ इज कैपिटल और स्मॉल दोनों भी चलता है। ये क्या बोलता है कि फुल फॉर्मेट लिस्टिंग दिखाता है, जितने भी आपका फॉर्मेट है इंफॉर्मेशन आपको दिखाई देगा। ओके, सो चेक आउट पीएस कमांड प्रोसेस हाइपन ई और एफ। आइदर आई कैन यूज कैपिटल एफ और स्मॉल एफ। ओके, दोनों हम यूज कर सकते हैं। चेक करो वही कमांड्स हैं पूरे के पूरे, बट ये डिफरेंट। जैसे स्टार्ट होता है तो रूट यूजर से स्टार्ट होता है, आफ्टर दैट रूट यूजर का कंट्रोल कब चेंज होता है, जब यूआई आता है। सी अभी इसमें फुल फॉर्मेट में क्या है, जस्ट 1 मिनट। में यूजर आईडी कौन है, प्रोसेस आईडी, प्रोसेस कौन से आईडी है, प्रोसेस पैरेंट प्रोसेस आईडी। ओके, मैंने बताया था हाई लेवल पैकेज एंड लो लेवल पैकेज। देयर इज अ two type of package, high level package and low level package. When we install any command by using high level package, automatically dependencies will be installed. ये मैंने बताया था आपको। Similarly, क्या होता है कि पहले आईडी पे दूसरा प्रोसेस यूज, so for example I want to perform one task. Okay, to execute that task we need to execute some three processes, first three second, first second and third. So first प्रोसेस का आउटपुट सेकंड के लिए इनपुट है, सेकंड प्रोसेस का आउटपुट थर्ड के लिए इनपुट है, और जो एग्जीक्यूट होता है तो आपका टास्क कंप्लीट होता है। सिमिलर वे पैरेंट प्रोसेस आईडी मतलब ग्रुप ऑफ प्रोसेसेस होती है। ओके, सो ये पैरेंट प्रोसेस आईडी होता है। टाइम है, एस टाइम है, टीटीवाई है, टाइम है एंड कमांड है। ओके, दैट मीन्स फुल फॉर्मेटिंग में ही ये इन्होंने बताया है। दैट्स इट, बाकी कुछ भी इसमें इम्पोर्टेंट नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए कि इसके मीनिंग्स क्या है, यूआईडी क्या होता है, पीआईडी क्या होता है, प्रोसेस पैरेंट प्रोसेस टाइम, सेटिंग टाइम क्या होता है, टीटीवाई क्या होता है, एक्चुअल टाइम क्या होता है, कमांड को। सो लाइक दैट, सो फुल फॉर्मेट लिस्टिंग कहते हैं इसको ना। उसके बाद में यूजर रिलेटेड आपको कुछ इंफॉर्मेशन, यूजर रिलेटेड ही प्रोसेस आपको देखना है। सी राइट नो आई हैव अ 3 यूजर, SCS इज देयर, अरविंद इज देयर, आफ्टर दैट रूट इज देयर। मुझे क्या करना है, ओनली रूट रिलेटेड इंफॉर्मेशन ही चेक करना है। सो व्हाट शुड आई डू, आई विल यूज ps हाइफन u एज ए यूजर नेम एंड हियर आई विल यूज रूट। सो रूट के रिलेटेड नहीं दिखाएगा, ओनली रूट यूजर। अगर आपको इसमें डिटेल में देखना है तो आपको फुल फॉर्मेट लिस्टिंग पता है, आप वहां से पास करके देख सकते हैं ना। रूट की जगह आपको ओनली यूजर नेम, पर्टिकुलर यूजर नेम इंफॉर्मेशन रिलेटेड देखना है तो अरविंद की जितने भी प्रोसेसेस हैं उतने ही दिखाएगा। मतलब यूजर रिलेटेड इंफॉर्मेशन चेक कर सकते हो एंड ऑल करना है। अगर मैं यूजर नहीं पास कर एंड जस्ट ई एंड एफ करता हूँ तो ये कंबाइन में देता है, रूट का भी अवेलेबल है और अरविंद का भी अवेलेबल है। यहाँ सुडो यूजर अरविंद है, इसकी वजह से और मास्टर यूजर रूट है, ये कंबाइन में। यूजर नेम आल्सो रूट भी दिखा रहा है, सिमडी भी दिखा रहा है, ये यूजर से बाय डिफॉल्ट यूजर से ही। ओके, उसे उनको एग्जीक्यूट होना है रूट
दिखा रहा है, कलर दिखा रहा है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ। अगर यूजर्स इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट करना है तो यूजर्स करो, अदरवाइज स्किप दैट। एंड लास्ट बट इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट, थ्रेड्स फाइंड आउट करना। ओके, ELF कमांड है थ्रेड्स फाइंड आउट करने के लिए, सेकंड लास्ट कमांड है, बहुत इंपॉर्टेंट कमांड है कि आपको आपके टास्क के कितने थ्रेड से ये चेक करना है। तो जस्ट वी नीड टू पास L। आपको क्या पास करना पड़ता है? L। ओके, प्रिंट द नंबर ऑफ थ्रेड्स, NLWP। ओके, नंबर ऑफ लाइट वेट प्रोसेस, प्रोसेस इज नथिंग बट थ्रेड, प्रोसेस को ही थ्रेड। तो ये नंबर ऑफ लाइट वेट थ्रेड फाइंड आउट करने के लिए है, जैसे PS-E कैपिटल L स्मॉल f, इसको मैं आपको फाइंड आउट करना है कि ये फुल फॉर्मेटिंग को हम रिमूव या तो आपको पता चलेगा, बट नहीं किया तो लाइट वेट नहीं प्रिंट होगा। ट्राई माय बेस्ट आपको समझने के लिए। मैं क्या करता हूँ, आपको फर्स्ट पार्ट जो हेडर से वो पढ़ेंगे ना। विजिबल आईडी मतलब ये PPID पेरेंट प्रोसेस आईडी है, ये LWP लाइट वेट प्रोसेस एंड नंबर ऑफ लाइट वेट प्रोसेस, ये थ्रेड्स होते हैं। ओके, अब थ्रेड कैसे होते हैं? See, थोड़ा सा नीचे जाओ, ये NLP में आपको नंबर दिखाई दे ग्रेटर देन 1 तो आपको समझ में आएगा। यहाँ ये इज अ 3, दैट मीन्स ये 3 थ्रेड्स है। कितने थ्रेड्स है? ये 3 थ्रेड्स है। कैसे पता चला मुझे? सी, ये आगे अगर आप टास्क है, कैसे पता चला? /USR/ESBIN और मोडेम मैनेजर टास्क एक ही है और उसके 3 थ्रेड से। अब इसके प्रोसेस आईडी देखो, पेरेंट प्रोसेस आईडी कौन से है? 818 877। ओके, ये 3 पेरेंट प्रोसेस आईडी, बट इनका प्रोसेस आईडी आप चेक करोगे तो एक ही रहेगा। सी, 818। ये पेरेंट प्रोसेस आईडी, ये 3 और ये तीनों की तीनों आईडी के अंदर सेम है, मतलब PID के अंदर प्रोसेस आईडी इनका एक ही है। जैसे मैंने अब भी बताया था कि व्हाट इज अ पैरेलल प्रोसेस आईडी। अगर आप हम करना है, यूनिट एग्जीक्यूट सर्टन प्रोसेसेस और उनको कंबाइन करने के बाद में ही टास्क कंसिडर किया जाता है। तो ये 3 डिफरेंट प्रोसेसेस है, 818, 855, 877। ये 3 को अगर मैं कंबाइन करूंगा तो 818 नाम का प्रोसेस एग्जीक्यूट होगा, टास्क कंप्लीट होगा। ये तीनों टास्क के अंदर मोडेम मैनेजर ही वर्क हो रहा है। सो NLP क्या होता है? नंबर ऑफ लाइट वेट प्रोसेसेस। तो नंबर ऑफ थ्रेड्स, प्रोसेस मतलब क्या होता है? थ्रेड्स। तो थ्रेड आउट करने के लिए कौन थ्रेड से, अब नीचे जाते सी हियर इज अ 4, यहाँ 4 है, कौन सा है? RES RESYS थ्रेड है इसके। इनके नंबर देखो, 829, 848, 849, 85। अगर तुम प्रोसेस आईडी चेक करोगे तो आएंगे 829, 829, 829, 829। समझ में आ रहा है? सो टू लाइक दैट, टू अभी ये फ्रेश है, अब ये चैप्टर कभी भी एडवांस रेड हैट सिस्टम इंजीनियर के लिए पढ़ाया जाता है, बट आपको थोड़ा और इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, इसलिए मैं आपको प्रोसेस चैप्टर पढ़ा रहा हूँ। ये बहुत यूजफुल है प्रोसेस कमांड। ओके, एंड एक कमांड है PS ट्री नाम की। ये ट्री जैसे आपका स्ट्रक्चर बना के डिस्प्ले करता है, जो भी आपके जो एग्जीक्यूशन है प्रोसेस कमांड के, प्रोसेस कमांड है पूरे, ये ट्री का हिसाब से एग्जीक्यूट करता है। सी, इन द फॉर्म ऑफ ट्री, कहाँ से प्रोसेस कहाँ से रन होती है, कैसे रन होती है, ये पूरी इंफॉर्मेशन देता है। फर्स्ट मोडेम मैनेजर रन हुआ, GDBus, Gmain, नेटवर्क मैनेजर है, HC क्लाइंट, DNS मैसेज, अकाउंट डीमर, ये पूरे के पूरे कौन से कमांड्स किसके अंदर आते हैं? इन द फॉर्म ऑफ ट्री।
ये आपको विजिबल होता है, जैसे आपको समझ लेने के लिए इजी जाएगा। मेन थ्रेड होता है, ये फायरफॉक्स ओपन हो रहा है, मेन थ्रेड है, उसके अंदर क्रोम है, जीएम थ्रेड है, प्रिविलेज काउंट है। सो ट्री फॉर्मेट में दिखाई देता है, दैट्स इनफ। को पूछा कि हाउ विल चेक द प्रोसेस कमांड इन द फॉर्म ऑफ ट्री, देन वी नीड टू यूज पीएस ट्री। क्या यूज करना है आपको? पीएस ट्री। सो ये बहुत कम लेस लेवल के चैप्टर है, मतलब लेस कमांड्स है, बट इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है, ये टास्क परफॉर्म करने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर्स है। ओके, सो आई थिंक देर आर ओनली 6 कमांड्स। पीएस कमांड, उसके बाद पीएस हाइपन ई एक्टिव दिखाने के लिए, यूजर रिलेटेड चेक करने के लिए पीएस हाइपन यू और यूजर नेम, उसके बाद में फुल फॉर्मेटिंग करने के लिए एफ कमांड यूज करना है, ई एफ, तो फुल फॉर्मेटिंग लिस्टिंग हो जाएंगी, और लाइट वेट के लिए एल यूज करना है, पी एस हाइपन ई एल एफ। सो लाइट वेट जितने भी होंगे वो नंबर ऑफ थ्रेड्स वो दिखाई देंगे, और उसके बाद में पी एस ट्री, मतलब मैक्सिमम कितने कमांड से? 6 कमांड। सो इसमें आपको यूज करना है, और ये आप भी याद रखना है कि ये प्रोसेस कमांड कहाँ से डेटा उठाता है, ये प्रॉक नाम के डायरेक्टरी हियरार्ची में से उठाते हैं। ये आपको दिखाई पता है, ये टर्मिनल मैंने पढ़ाया था, सी डी स्लैश एल एस, ये यहाँ का फोल्डर दिखा रहा है, प्रॉक की इंफॉर्मेशन पूरी इसके अंदर होती है। एंड ये जो प्रॉक सिस्टम है, इसके अंदर पूरा कर्नल की इंफॉर्मेशन रहती है, और यहाँ से ही आपके पीएस पूरी की पूरी फाइल सिस्टम उठाते हैं। ओके, मतलब डिस्प्ले करने की। सो दिस इज ओवरऑल अबाउट। इफ यू हैव एनी क्यूरी तो लेट मी नो, अदरवाइज वी विल स्टार्ट न्यू चैप्टर। स्मॉलर स्मॉलर चैप्टर है बहुत। डज एनीवन हैव एनी क्यूरी? प्रतीक, श्रुति? No, sir. नो, इजी। ऋषिकेश? नो सर। ओके, ग्रेट। बहुत easy commands हैं ये, easily we can perform. So now I will close that, and let's do one thing. We'll now perform top command, इसके ही ऊपर डिपेंड है, वो परफॉर्म करता है टॉप एंड एच टॉप, और उसके बाद में मॉनिटरिंग का कमांड्स है, ये मॉनिटर परफॉर्म करेंगे टॉप एंड मॉनिटरिंग। अगर टाइम मिलता है फॉर 10 o'clock, देन वी कैन आल्सो एबल टू परफॉर्म स्क्रिप्टिंग। ओके, नहीं मिलता है टाइम, देन वी विल डू इट टुमारो मॉर्निंग। देखो, मिलने वाला है कॉलेज में, इंटरव्यू एक्टिविटी है, सो टाइम नहीं। सो 10 बजे तक अगर टाइम मिलता है, 10 o'clock, 10 तक, तो विल डू इट। नाउ टॉप कमांड, टॉप एंड स्टॉप। टॉप एंड yes stop, both are same commands. First one is a व्यू करने के लिए होता है, और दूसरा डायनामिक व्यू करने के लिए होता है। करंट इंफॉर्मेशन ही टॉप कमांड दिखाता है, लाइव इंफॉर्मेशन चेक तो stop यूज करना पड़े। ओके, फॉर दैट वी नीड टू इंस्टॉल वन पैकेज। सो व्हाट इज टॉप कमांड? टॉप कमांड is the processor activity. See, which are already seen the what are the process, and for that we already seen ps command. Okay, but maximum जगह ps command just activity के लिए यूज किया जाता है, जस्ट एक्शंस कौन सा है इसके लिए यूज किया जाता है। मैक्सिमम जगह टॉप कमांड ही यूज किया जाता है टू व्यू द कंटेंट और टू व्यू द प्रोसेसेस व्यू करने के लिए मैक्सिमम जगह क्या? टॉप कमांड ही, जस्ट वन मिनट, टॉप कमांड ही यूज किया जाता है। ओके, so the top command displays process activity of Linux box and also display the task managed by the kernel in real time. It will show the processes and memory and being used and other information like running processes. कौन से running process है, कितनी मेमोरी है, क्या है, ये पूरी इंफॉर्मेशन ही डिस्प्ले करता है। सो लुक लाइक टॉप ऐसा दिखता है, ये आपके विजिबल हो रहा है इसके सामने, सो उसके हिसाब से दिखता है। आई विल ओपन दैट, सो विल डू द
प्रैक्टिकल डायरेक्टली, हियर इज द टॉप। जैसे मैं टॉप करता हूँ, बाहर आने के लिए आपको क्यू प्रेस करना पड़ता है। फिर से टॉप किया है, और यहाँ आप माउस यूज कर सकते हैं स्क्रॉल करने के लिए, अप एंड डाउन होता है यहाँ पूरा, और इसके हिसाब से आप प्रोसेस इंफॉर्मेशन आप चेक कर सकते हैं। ओके, अभी ये नंबर्स जो है वो एक्टिव प्रोसेस के ही इंफॉर्मेशन से वन बाय वन। First, the name of command is a top. Okay, current time is 9 hours, 9 a.m. 14 minutes and 38 seconds. सिस्टम लास्ट 45 मिनट से अप है, ये अप टाइम दिखाता है। अगर आप कंपनी में काम करने जाओगे तो यहाँ नियर अबाउट 4,000 आवर्स, 20,000 आवर्स, बिकॉज एक बार सिस्टम कंपनी का अप हो गया तो डाउन कभी भी नहीं होता है। ओके, सो ऐसा नहीं होता है कि आज काम खत्म हुआ मैं सिस्टम डाउन करके घर पे चले जाता हूँ, ऐसा नहीं होता है कंपनी में। वंस द सिस्टम इज अप, इट ऑलवेज अप। ओके, जब डाउन होता है दैट मीन्स वो क्रैश होता है, That- ऐसे मीनिंग कर जाता है लिनक्स के अंदर। सो लास्ट 45 मिनट से मेरा सिस्टम अप है। एक ही यूजर लॉगिन है। मेरा लोड एवरेज किसका, सीपीयू का। ओके, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का मेरा लोड टाइम है। फर्स्ट 1 मिनट का है, सेकंड 5 मिनट्स का है, एंड थर्ड 15 मिनट्स का है। 1 मिनट के अंदर मेरे सीपीयू पे कितना लोड आता है, 1.0। 5 मिनट्स के लिए कितना लोड आता है ये यहाँ डिस्प्ले कर रहा है, एंड 15 मिनट्स के लिए कितना आता है ये यहाँ डिफरेंट है, लोड एवरेज टाइम। ओके, अगर कहीं सडनली स्पाइक होता है कहाँ, 1 मिनट, तो हम वेट कर सकते हैं। अगर स्पाइक ये, तो हम फिर वेट नहीं कर सकते, हमें सिस्टम पे कुछ तो सडनली एक्शन लेना पड़ता है। स्पाइक मतलब क्या, अब ये जो 1.42 है ये 10 के ऊपर नहीं जाना चाहिए आपका। ओके, दैट मीन्स एक्चुअल आपका जो प्रोसेसिंग है ये लेस देन 10 ही होना चाहिए। तो इसकी वजह से ये लोड एवरेज टाइम दिया है यहाँ। टास्क टोटल 260 टास्क थे मेरे पास, टोटल इतने टास्क परफॉर्म हुए हैं अभी तक। अंदर प्रोसेसेस रनिंग कौन से है, तो ओनली वन टास्क इज रनिंग। बाकी जितने भी 214 215 टास्क है ये स्लीपिंग मोड में है। जैसे ही सिस्टम स्टार्ट होता है तो टास्क ऑन हो जाते हैं, काम होने के बाद में वो स्लीप मोड में चले जाते हैं। तो यहाँ 2 टास्क रनिंग दिखा रहा है, कभी 2 दिखा रहा है, कभी 1 दिखा रहा है। सो आई थिंक टॉप कमांड है वो भी टास्क ट्रीट कर रहा है, तो यहाँ दिखाएगा टॉप कमांड आपको। आपको थोड़ा सा पड़ेगा या, तो यहाँ आपको टॉप कमांड, yeah, this one is a top command, will be treated as a task. Where is that? Yeah, yeah, this one is a top command. ये top command है, will be treated। Okay, now task पढ़ लिया, कितने स्टॉप है, एक भी स्टॉप नहीं है। एंड ज़ोंबी, अभी सभी को पता है ज़ोंबी मतलब ऐसी प्रोसेस जो डिलीट ही नहीं हो सकती। ओके, वो सिस्टम की हो सकती है या यूजर की हो सकती है, ऐसी प्रोसेस जो डिलीट ही नहीं हो सकती। मतलब आप कितना भी कोशिश कर लो उसको, उस प्रोसेस को डिलीट करने के लिए, वो डिलीट नहीं होगी। बैड बैड प्रोसेस। तो यहाँ कितने बैड प्रोसेस है ये दिखाता है ज़ोंबी। अभी इस रिलेटेड इंफॉर्मेशन है। ओके, आपका कर रहा है दैट मीन्स यहाँ यूएस टाइम दिखाता है, 15% आप यूज कर रहे हो। 5.9% आपका कर्नल है, ये नाइस वैल्यू 0% यूज कर रहा है। नाइस समथिंग, ये वैल्यूज होते हैं, विल डिस्कस वन बाय वन। नाइस वैल्यू यूज कर रहा है। आइडियल 77% और 76% मेरा सिस्टम आइडियल है। 2% यूज किया है। हार्डवेयर 0% है। सॉफ्टवेयर इंटरप्ट के लिए 0, इंटरप्ट मतलब स्टॉप करना, एंड स्टिल के लिए 0% यूज किए। ओके, इतना जरूरी नहीं है जितना इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्या है, ये टास्क इंपॉर्टेंट है हमें, और ये टॉप कमांड का अप कब से है, कितने यूजर्स हैं, और लोड एवरेज कितना, दैट्स इनफ, इतना ही हमें इंपॉर्टेंट रहता है। ये किलोबाइट मेमोरी के हिसाब से 12 GB ऑफ रैम मेरे पास है, एंड ये मेरा मेमोरी है। ओके,
ये स्वैप मेमोरी है और ये मेरा एक्चुअल रैंडम एक्सेस मेमोरी है। इसके बाद इसके अंदर टोटल फ्री कितना है, 9 GB फ्री दिख रहा है। एंड यूज कितना दिखा रहा है, 1 GB यूज दिखा रहा है नियर अबाउट। बफर में कितना है, 1.7 GB बफर में है। ओके, स्वैप में सेम है, स्वैप की मेमोरी फ्री कितने जितनी है उतनी एज इट इज फ्री है। बिकॉज मेरे पास रैम एक्स्ट्रा है तो मैं स्वैप मेमोरी यूज नहीं करूंगा। स्वैप मेमोरी कब यूज करते हो, सी आई विल गिव यू वन एग्जांपल। I have one application, okay, one gaming application. I want to install that application on, but my laptop size is 4 GB only. लिनक्स है मेरे पास और उसकी मुझे रैम की साइज मेरे 4 GB ही है। बट मेरा जो एप्लीकेशन है ना उसके के लिए वी रिक्वायर्ड 6 GB ऑफ रैम। राइट नाउ आई हैव ओनली 4 GB। सो लैपटॉप पे रन होगा क्या, द आंसर इज यस। अगर आपके पास 4 GB ऑफ मेमोरी है और आपका एप्लीकेशन 6 GB है तो भी आपका एप्लीकेशन रन होगा। कैसे, बिकॉज आपका जो ड्राइव है, हार्ड डिस्क है, उसके ऊपर जो हार्ड डिस्क है उसकी हार्ड डिस्क विल बी दैट हार्ड डिस्क एक्स्ट्रा स्पेस ऑफ 2 GB वो कंसिडर कर लेगा एंड दैट स्पेस विल बी ट्रीटेड एज अ रैम। एंड उस कंसेप्ट को क्या कहा जाता है, स्वैप। उसी का कहा जाता है स्वैप। समझ में आ रहा है कि आपके पास 4 GB की डेटा है, आपका गेमिंग एप्लीकेशन 6 GB का है, एंड नाउ वी नीड टू एग्जीक्यूट दैट गेमिंग एप्लीकेशन ऑन योर लैपटॉप और योर डेस्कटॉप व्हाट इट मे बी, जो भी है आपका वहां इंस्टॉल करना है। देन सिस्टम, आपका सिस्टम क्या करेगा, हार्ड ड्राइव की 2 GB ऑफ मेमोरी विल बी ट्रीटेड एज रैम। सो 4 GB प्लस 2 GB it will be treated as 6 GB. In that 4 GB is a random access memory and 2 GB is a swap memory. Which memory, swap memory, और उसका combine होके वो application swap related information है। This one is a process ID, this one is a user, these are the priority। अब priority भी ना इसके दो होते हैं, ओके, mean priority, maximum priority and neutral। मैक्स प्रायोरिटी एंड ओके। अभी नाइस में कैसे रहता है कि -20 टू +20, -20, -19, -8, -16 अप टू -1, -2, -1 और उसके बाद में 0, और 0 के बाद में 1 2 3 4 5 6 अप टू 20। तो ये स्ट्रक्चर नाइस का कैसे होता है, -20 टू +20। अगर टास्क है तो इसकी वैल्यू माइनस में चली जाती है, जैसे -20, -10, -7, -8, -15। अगर टास्क नॉर्मल है तो उसकी वैल्यू 0 में चली जाती है, 0 0, दैट मीन्स नॉर्मल टास्क है, नॉर्मल टास्क है। और वैल्यू अगर पॉजिटिव है, जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो बहुत ही नॉर्मल टास्क है। ओके, ये प्रायोरिटीज होती है। अब यहाँ मैंने 20 दिया है तो ये नॉर्मल टास्क है, ये नॉर्मल टास्क है। ये -50 है, ये बहुत टास्क है। ये 0 है, ये नॉर्मल टास्क है। ये -20 है, दैट मीन्स ये बहुत सेंसिटिव टास्क है, कर्नल का ऑपरेशन था। सो लाइक दैट इसके ऊपर डिपेंड होता है। बट ये किसके ऊपर डिपेंड होता है, प्रायोरिटी के ऊपर नहीं होता है, नाइस के ऊपर डिपेंड होता है। और नाइस की वैल्यूज कहाँ से होती है, नाइस की वैल्यू कभी भी याद रखना 20 to 20 होते हैं, 20 to 20। जब आप माइनस में होते हैं तो हाई पर है, 0 होता है तो नॉर्मल प्रायोरिटी होती है, एंड अबव पॉजिटिव होता है 1 के ऊपर तो लेस प्रायोरिटी, हाई प्रायोरिटी, नॉर्मल प्रायोरिटी एंड लेस प्रायोरिटी। नाइस के अंदर ये वी वर्चुअल वर्चुअल इंफॉर्मेशन है, ये रेसिडेंशियल मेमोरी है। ओके, रेसिडेंशियल, ये शेयर्ड मेमोरी है, ये स्लीपिंग कंडीशन कितने % यूज कर रहा है, ये मेमोरी है, ये टाइम्स है एंड कमांड, ये पूरी की पूरी आपको पता हो। ओके, नाउ अब इसके अंदर टॉप के अंदर हम क्या क्या किया है, पहले डिस्प्ले टॉप कमांड, ये टॉप के बारे में मैंने पूरे बता दिया। डिस्प्ले स्पेसिफिक यूजर प्रोसेस, ओके, यूजर रिलेटेड स्पेसिफिक यूजर की प्रोसेस दिखना है तो आपको क्या करना है, टाइप टॉप -u और यूजर का नाम करना है, टॉप -u और यूजर का नाम देना है आपको। तो यूजर स्पेसिफिक ही स्पेसिफिक, जनरली मैं जब बताऊँ ना, जनरली
मिक्सचर होता है। सी, रूट भी दिखाई दे रहा है और मेरा नाम भी दिखाई दे रहा है। तो आपको यूजर स्पेसिफिक करना है तो आप यूजर स्पेसिफिक भी रन कर सकते हैं। मैं आपको हाईलाइट करना है कौन सी प्रोसेस आप मुझे कमांड है, ये मुझे सब में चाहिए तो मैं Z प्रेस करूंगा। ओके, अब ये Z करने के बाद में ये टॉप कमांड के ऊपर कर्सर है, ये इसे मैं हाईलाइट कर सकता हूँ। सो हाईलाइट करने के लिए सिंपली आपको क्या करना है, Z कमांड प्रेस करना है। सो आपका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, हाईलाइट होगा। मतलब आपको पर्टिकुलर प्रोसेस पे ही ध्यान देना है तो आप दे सकते हैं, पर्टिकुलर एक प्रोसेस पे। सो हाईलाइट स्ट्रक्चर रिमूव करना है तो फिर से Z प्रेस करना है, अंदर जाना है तो Z प्रेस करना है। तो हाईलाइट स्ट्रक्चर करना है तो Z करना है, दैट्स इट। Highlight running process in top. Press Z option in running top command will display the running processes. Okay. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किल द रनिंग प्रोसेस विद आर्ग्यूमेंट के। अब मुझे क्या करना है, किल करना है प्रोसेस को, बट उसके पहले मुझे क्या करना है कि किसकी भी प्रोसेस को मुझे क्लियर करना है तो उसके लिए मुझे उसकी इंफॉर्मेशन चाहिए। क्या इंफॉर्मेशन चाहिए, जस्ट मुझे प्रोसेस आईडी लगेगा उसका। ओके, और उसके बाद में मेरे पास टू ऑप्शन होते हैं, एक फोर्सफुली होता है और एक ग्रेसफुली होता है। ये 9 जो होता है ना, ये फोर्सफुली होता है, एंड 15 जो होता है ना, ग्रेसफुली होता है। ये नंबर होते हैं, सिग्नल्स होते हैं, सिग्नल्स भी 1 to 15 के बाद होते हैं, इन बिटवीन 1 to 15 सिग्नल्स होते हैं। अब ये मेनली दो ही यूज होते हैं, 15 एंड 9। अब ये फोर्सफुली एंड ग्रेसफुली क्या होता है कि जब मैं एक XYZ प्रोसेसर, फॉर एग्जांपल आई एम एग्जीक्यूटिंग टॉप प्रोसेस, टॉप कमांड, तो उसके लिए उसकी प्रोसेस स्टार्ट होती है। नाउ उसे मैं जब 15 सिग्नल पास करता हूं तो आई एम मेकिंग अ रिक्वेस्ट टू द कर्नल। ओके, कर्नल को रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि ये मुझे प्रोसेस बंद करवाना है, दैट मीन्स ये हो गया ग्रेसफुली। अब जब मैं 9 प्रेस करता हूं तो मैं कर्नल को इंटीमेट नहीं करता हूं, डायरेक्टली प्रोसेस सडनली इंस्टेंटली वो क्लोज हो जाती है, तो वो होता है फोर्सफुली। सो 9 पास किया तो फोर्सफुली, 15 पास किया तो ग्रेसफुली। लेट्स डू द प्रैक्टिस। टॉप डिलीट भी किसे करेंगे, टॉप कमांड को ही करेंगे, यानी अदर प्रोसेस को नहीं करेंगे। ये आपकी टॉप कमांड है और इसका प्रोसेस आईडी है 362। अभी फिर से आएगा, क्या है टॉप कमांड 3622। अभी इसको हमें डिलीट करना है, ये प्रोसेस को हमें बंद करना है। सो प्रेस के आईडी सिग्नल, किल किसको करना है, टॉप को करना है। तो हमारे पास उसका आईडी क्या था, 3622। just will wait for one more time, 3622। yeah, this one is your id top का 3622, kill 36। ये प्रोसेस मुझे बंद करवानी है अभी। एंटर। अब ये क्या बोल रहा है, सेंड PID 3622 सिग्नल 15। ओके, ये 15 सिग्नल सेंड करो। ये क्या है, ग्रेसफुली, ग्रेसफुली ये कर दिया, 15 दे दिया, तो ये मैं कंट्रोल के बाहर। ओके, अब एक्चुअल प्रोसेस टॉप कमांड बंद हो गई, इसके लिए मैं कंट्रोल के बाहर आ गया, बिकॉज ये कमांड जो दिखा दे रही थी, ये पूरा इंफॉर्मेशन टॉप कमांड की वजह से दिखाई दे रहा था, और उसे बंद करने के बाद में ये बाहर आ गया। फिर से हम टॉप कमांड जाएंगे, अगेन हम किल करेंगे। अब ये हमें फोर्सफुली करना है, AD फॉर टॉप, यहाँ सर्च करना है, कमांड का नाम क्या है, टॉप एंड 3626, 3626 top command, kill 3626 and here we need to pass 9। अभी क्या करेगा, फोर्सफुली कट करेगा। सी, एंटर। आगे देख रहे होगे ना, 15 के आगे 9 किल्ड। अब ये डायरेक्टली सडनली बुक हो गया है, तो इसलिए उसका जो एंड है बाहर नहीं। सी, एंटर 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 एंटर, ये पूरा स्टक हो गया। सो ग्रेसफुली से जब भी टास्क करते हैं ना तो ये किस डायरेक्टली सडनली इंटीमेट कर देता है। तो इसलिए ऐसे प्रोसेस होते हैं जो डिलीट नहीं कर पा रहे तो उसे फोर्सफुली डिलीट करना पड़ता है, और जो ग्रेसफुली हो सकते हैं उसे ग्रेसफुली ही डिलीट करना पड़ता है। इज इट ओके? सो बाय यूजिंग दिस वे वी कैन डिलीट द प्रोसेस, इवन वी कैन डिलीट द फायरफॉक्स आल्सो, बट हमारा सेशन चालू है, हम फायरफॉक्स यहाँ से नहीं डिलीट कर सकते। सो फायरफॉक्स आप घर पे डिलीट कर दो, चेक करो, प्रोसेस ऑन करो और उसका PID डालो और उसकी
फोर्सफुली मत करो, ग्रेसफुली करो। और आपको चेक करके देखना है फोर्सफुली, तो फोर्सफुली भी करके देखो, तो सडनली आपका आपका जो फायरफॉक्स ब्राउजर है वो क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। ओके, सो जैसे मैंने बताया कि व्हाट आर द प्रोसेस, प्रोसेसेस इज नथिंग बट ग्रुप ऑफ टास्क। ओके, ग्रुप ऑफ प्रोसेसेस इज नथिंग बट टास्क। तो जैसे अभी फायरफॉक्स रन कर रहा है तो बैकग्राउंड में ये प्रोसेस रन हो रहा है उसका। ओके, बाद में है रीनाइज द वैल्यू। ओके, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके अंदर टॉप के अंदर दो ही इंपॉर्टेंट रहते हैं, एक तो मॉनिटरिंग करना होता है, उसके बाद में आपको प्रोसेसेस किल करना पड़ता है, या प्रायोरिटीज चेंज करना होता है। आपको प्रायोरिटीज क्या करना होता है, चेंज होता है। रिनाइस मतलब क्या होता है कि प्रायोरिटी चेंज करो। जैसे मेरे पास तीन प्रायोरिटी है, हाई प्रायोरिटी है, नॉर्मल प्रायोरिटी है एंड लो प्रायोरिटी, और मैं उसको -20 will be treated as a high priority, 0 will be treated as a uh, low priority, so normal priority, and 20 positive 20 will be treated as a less priority। तो ये मैंने डिविडेंड कर लिया है, ये तीन इसमें इसको डिवाइड कर लिया। अब इसको चेंज करना है, तो फॉर दैट मुझे क्या करना पड़ेगा, आर से यू कैन यूज आर ऑप्शन टू चेंज द प्रायोरिटी। अब प्रायोरिटी चेंज करेंगे। अब हम टॉप कमांड की प्रायोरिटी चेंज करके देखेंगे। टॉप प्रोसेस आईडी फॉर टॉप, टॉप है 3645, क्या है 3645, सो विल पेस्ट आर 3645, एंटर। रिनाइज वैल्यू, उसकी वैल्यूज कितनी थी, फर्स्ट विल चेक आउट। टॉप कमांड रिनाइज, ये नॉर्मल प्रायोरिटी है, रिनाइज के अंदर देखना है हमें। यहाँ जीरो दिखा है, क्या है जीरो, मतलब टॉप नॉर्मल प्रायोरिटी है। टॉप कमांड की क्या है, नॉर्मल प्रायोरिटी है। ओके, सो इसे हमें हाई प्रायोरिटी करना है टॉप को। सो टॉप का क्या है 36, आर रिनाइज 3645, और इसे हमें -20 देना है। ओके, एंटर। फेल्ड क्यों, बिकॉज ये सुपर का काम है। सुडो टॉप, सुडो कर टॉप अभी क्या है 3654, आर 3654, एंटर, -20, डन। अब टॉप को ढूंढना है आपको, ये टॉप है। अब इसकी प्रायोरिटी चेक करो, नाइस वैल्यू क्या हो गई, 0 से -20। वैल्यू कर्नल को इंस्ट्रक्ट करती है कि ये जो टास्क है टॉप का, ये हाई प्रायोरिटी पे, सही कंपनी में आपको XYZ प्रोसेस रन हो रहा है और बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप उसको रिनाइज करके चेंज कर सकते हैं। सो आपको पता चलेगा। ये वर्चुअल मेमोरी, रेसिडेंशियल मेमोरी, ये शेयर्ड मेमोरी का इंपॉर्टेंट नहीं है, जैसा आपको पता होना चाहिए। स्लीपिंग टाइम से आईसीयू सीपीयू के यूसेज है, कौन से कितने यूज कर रहे हैं एंड टाइम है, दैट्स इट। सो कम नहीं था, इम्पोर्ट एक ही है, इसमें दो ही है, एक तो किल करना और दूसरा रिनाइज करना। किल करते समय फोर्सफुली एंड ग्रेसफुली, एंड रिनाइज करते समय आपको हाई प्रायोरिटी, नॉर्मल प्रायोरिटी एंड लेस प्रायोरिटी का ध्यान रखना पड़ता है। नेक्स्ट एच टॉप है। अभी एच टॉप में टॉप में क्या डिफरेंस है, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ही इतना ही है, दोनों के दोनों लाइव रिप्रेजेंट ही करते हैं, बट टॉप कमांड आपकी जो है ये ग्राफिकल डिस्प्ले नहीं करती है। एच टॉप कमांड क्या है, आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करती है। ओके, के अंदर htop command in Linux system is command line utility that allows user to interactively monitor the system vital resources or server processes in real time। जस्ट ये आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देती है, इसके अंदर भी किल होता है, इसके अंदर भी रिनाइज होता है, और बहुत इजी वे से होता है। बिफोर यूजिंग, जब आप htop आपकी, अभी मैंने इंस्टॉल किया है एप्लीकेशन, बट आप जब फर्स्ट टाइम एचटॉप यहाँ एंटर करोगे ना, तो आपको वो दिखाई नहीं देगा। सो फॉर दैट वी नीड टू इंस्टॉल वन पैकेज, sudo apt get install htop। इंटरनेट कनेक्ट होना चाहिए, आप ये इंस्टॉल कर लो। ओके, जैसे भी आप इंस्टॉल करते हो, तो उसके बाद में जस्ट आपको क्या करना है, htop करना है, आपको ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिखाई देगा। सो मेमोरी रिलेटेड इंफॉर्मेशन, स्वैप रिलेटेड इंफॉर्मेशन, ये सभी यहाँ इंफॉर्मेशन दिखा है। सीपीयू रिलेटेड इंफॉर्मेशन, टास्क कितने हैं,
थ्रेड्स कितने हैं, कितने रनिंग्स है, लोड एवरेज टाइम 1 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट्स, अप टाइम लास्ट 1 आवर से ये सिस्टम क्या है, अप है। उसके बाद है प्रोसेस आईडी, यूजर, प्रायोरिटी, नाइस, रेसिडेंशियल मेमोरी, शेयर्ड मेमोरी, सीपीयू मेमोरी, टाइम, कमांड, एज इट इज टॉप है। और नीचे ना, नीचे ऑप्शन है, सी अगर आप नाइस करना है तो F7 प्रेस करना है, और किल करना है तो F9, ये दो ही इंपॉर्टेंट है हमें। और क्विट कर प्रेस करना है। अभी यहाँ मैं किल कर, तो F9, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको वो कर्सर लेके जाना है, किसको किल करना है। सो मुझे ना टॉप कमांड को किल करना है। सो टॉप कमांड, स्टॉप कमांड को। सो स्टॉप कहाँ है, यहाँ फायरफॉक्स है, बट जस्ट स्टॉप कमांड चाहिए मुझे। हाँ, या दिस वन इज स्टॉप, ये यहाँ आपको स्टॉप दिखे। यहाँ आपको सेपरेट पास करने की जरूरत नहीं है, आपको आईडी पे नहीं जाना है, जस्ट उसको सिलेक्ट करना है, और सिलेक्ट करके आपको F9 प्रेस करना है। F9 जैसे भी आप प्रेस करते हो तो आपको वो वर्क हो जाएगा। F9 सी, अभी F9 मैंने पास किया है, यहाँ 0 to 15 सिग्नल्स है आपके। ओके, तो ये बोल रहा है आपको 15 नंबर का सिग्नल पास करना है, तो ये नॉर्मली डिलीट हो जाएगा। 9 करना है तो ये फोर्सफुली हो जाएगा। आपको दो ही याद रखना है, 9 एंड 15। सो 15 करता हूं तो मैं एंटर 15, और उसके बाद में एंटर। सी, मैं स्टॉप से बाहर आ गया, यहां से मैं किल कर सकता हूं। ये टॉप स्टॉप कमांड F9। अब हम फोर्सफुली करेंगे। सी, जैसे करता हूं तो मैं बाहर आ गया, या कौन से, यहाँ आपको टॉप पे दिखाई देगा किल्ड, जहां से प्रोसेस स्टार्ट हुआ वहां से किल्ड। सो ऐसे एंटर करके बाहर आना आपको बाद में। ओके, सेम रिलायंस वैल्यू भी कर सकते हो, जो हमने टॉप में किया वो एज इट इज यहाँ परफॉर्म कर सकते हो। रिलायंस करना है तो आप एफ8 करना ओनली, और उसकी प्रायोरिटी चेंज करना है। उसके लिए आपको स्टॉप है, सेम हियर इज स्टॉप, इसके प्रायोरिटी 0 है, तो हम F8 में जाते हैं। नाइस वैल्यू, बटन प्रेस नहीं हो रहा। ये चेंज नहीं हो पा रहा है, मेरे की वजह से हो रहा होगा। जस्ट आप एक बार ट्राई करके देखो, नहीं होता है तो मुझे बोलो, मैं उसे फाइंड आउट करता हूँ, क्योंकि मेरा F8 प्रेस। ओके, गुड। सो दिस इज ऑल अबाउट टॉप एंड स्टॉप। सो याद क्या रखना है टॉप में और स्टॉप में आपको, और क्यों देखना है, सेम रिसोर्सेस मैनेज करने के लिए आपको टॉप को याद रखना है, दैट्स इट। और उसमें जो अपर सेक्शन है, टॉप सेक्शन, वो सेक्शन आपको हैंडल करना है। जैसे अप टाइम कितना है, यूजर की, लोड एवरेज टाइम कितना है आपका, फॉर 1 मिनट, फॉर 5 मिनट एंड फॉर 15 मिनट्स, टास्क कितने रनिंग है आपके, मेमोरीज कितने अवेलेबल, यूटिलाइजेशन कितने कर रहा है फर्स्ट सेक्शन यूएस में, कर्नल यूटिलाइजेशन कितना कर रहा है, नाइस यूटिलाइजेशन कितना कर रहा है, आइडियल कितना है, वेट कितना है, हार्डवेयर इंटरप्ट कितना है, सॉफ्टवेयर इंटरप्ट कितना है, ये इंफॉर्मेशन आपको। और इसके अंदर दो इंपॉर्टेंट हाईलाइट करना है तो जेड यूज करना है, और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट किल करना है और प्रोसेस आईडी देके 15 या 9 नंबर का सिग्नल पास करना है। एंड नाइस वैल्यू, नाइस के लिए हाई प्रायोरिटी, नॉर्मल प्रायोरिटी है, लेस प्रायोरिटी, दैट्स। कुछ क्यूरी है किसी को? डज एनीवन हैव क्यूरी? सर हम्म, सर ते प्रोसेस आयडी जर किल करायची तर के दाबावं लागेल का? हाँ, टॉप मध्ये
मला वाटलं सर वरती ऑप्शन येतं की काय ते किलचं. नहीं 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 नहीं, वी नीड टू क्लेम. सर तुमचा व्हॉइस येत नाहीये. एक मिनिट, मला कॉल आला होता त्याच्यामुळे मे बी नेटवर्क इश्यू असेल. ओके सर. हॅलो. हा सर येतोय व्हॉइस. ओके, ग्रेट. एनीथिंग एल्स? ओके. एक छोटा सा मॉनिटर क्लोज, एक ऐसा उसके ऊपर डिपेंड है. सो हमने फाइंड पढ़ा, पीएस पढ़ा, टॉप एच टॉप पढ़ा, और उसके बाद में ये मॉनिटरिंग प्रोसेस मैनेज करने की सार कमांड बोलते हैं इसको, ऐसे सिस्टम एक्टिविटी रिपोर्ट, उसके बारे में पढ़ेंगे. उसके अंदर आईओ स्टैट एंड वीएम स्टैट एक एडिशनल है, मतलब हार्डली 3 से 4 कमांड्स है, वो पढ़ लेंगे और आफ्टर दैट वी विल क्लोज द सेशन. और उसके बाद में हमारा ओनली स्क्रिप्टिंग रहता है, एंड स्क्रिप्टिंग प्लस पार्टिशन प्लस स्वॅपिंग, हे 3 चॅप्टर आपले रिमेनिंग राहतात, ते आपण उद्या घेऊ शकतो मॉर्निंग. ओके. सो द नेक्स्ट चैप्टर, और बहुत इजी, हेवी नहीं है, मॉनिटरिंग रिसोर्स मैनेजर, हार्डली. सो मॉनिटरिंग रिसोर्स मैनेजर. Okay, so before doing the star, sorry, before these two command SAR, so SAR करने से पहले हम क्या करेंगे, 2 कमांड देंगे. ओके, इसके अंदर IO, ओके, सेकंड वन इज VM स्टैट, और ये ऑलरेडी हमने ना किस में देखे हैं, टॉप एंड एच टॉप में देखे, तो इसलिए बहुत इजी है, इसकी वजह से मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ, दिखा रहा हूँ. सो इसके अंदर क्या इंपॉर्टेंट है कि फर्स्ट आईओ मतलब क्या होता है, इनपुट आउटपुट स्टैटिस्टिक्स. जो भी इनपुट आउटपुट स्टैटिस्टिक्स है वो आपको आईओ स्टैट में मिलेंगे. एंड वीएम मतलब वर्चुअल मेमोरी स्टैटिस्टिक्स. ओके, सो लेट्स चेक आईओ स्टैट. या सी, जहां सीपीयू रिलेटेड इनपुट आउटपुट में सी यूजर कितना परसेंट है, डिवाइसेस कौन से है. अभी इनपुट आउटपुट में मेरे पास 2 डिस्क है, इसमें क्या रहना, इसके अंदर आईओ स्टैट में क्या एक्चुअल चेक करना है आपको कि आपकी रीड स्पीड कितना है, राइट स्पीड करना है. अब एज मेरे पास दोनों के दोनों ना एसएसडी है, सॉलिड स्टेट ड्राइव डिस्क है, हार्ड ड्राइव नहीं है मेरे पास, एसएसडी है. तो इसका जो राइट स्पीड है ये देखो कितना है, एंड रीड स्पीड है ये देखो कितना है. आप अपने कंप्यूटर पे चेक करो, इतना राइट स्पीड आपके होगा. अगर आपके पास एसएसडी है तो ही आपको राइट स्पीड बढ़ेगा, अदरवाइज आपका स्पीड नहीं बढ़ेगा. ओके, तो ये रीड राइट कितने डिस्क है, ऐसी इंफॉर्मेशन आपको इनपुट आउटपुट स्टैटिस्टिक में दिखाई देगी. आप कौन सा कर्नल यूज कर रहे हो, आप कितने बिट का आर्किटेक्चर यूज कर रहे हो, आपके पास कितने सीपीयू है. सी, आई हैव 4 CPUs. सो उसकी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ आईओ इनपुट आउटपुट स्टैटिस्टिक में मिलेगी. ओके, कितना आइडियल है, कितनी स्टिल मेमोरी, इनपुट आउटपुट वेट कितना है, सिस्टम कितना है, नाइस वैल्यू कितना यूज कर रहा है, लाइक दैट. एंड वीएम स्टैट एक कमांड है जो वर्चुअल मेमोरी रिलेटेड स्टैट है. सो इसके अंदर स्वैप एंड मेन मेमोरी यूज किया जाता है. सो फ्री कितना है, अप टू 9 GB है, बफर में कितना है, 2 GB है, टोटल कितना है, 15 GB कैचे में है, 15 MB कैचे में है, 15 GB सॉरी. सो एस आई, सॉफ्टवेयर इंटरप्ट, एसओ, बीआई, बीओ, ये फुल पे जरूरत नहीं है, बट जस्ट इंफॉर्मेशन लेना है कि ये प्रोसेसेस मेमोरी स्वैप आईओ सिस्टम एंड सीपीयू, दैट मीन्स वर्चुअल मेमोरी रिलेटेड इंफॉर्मेशन दिखा है. बट सिमिलरली टॉप में भी हमने देखा था कि यहाँ भी एक सेक्शन है मेमोरी का. सी, यहाँ भी आपके पास मेमोरी का सेक्शन है, बट यहाँ जो दिख रहा है ना, ये किलो बाइट्स में दिखा रहा है इन द फॉर्म ऑफ केबी. ओके, ये केबी है, इसको अगर आप कन्वर्ट करोगे तो इन नियर अबाउट ये 12 GB पे आएगा. और स्वैप है मेरा 8 GB का, मतलब टोटल मेमोरी मेरे पास कितना है, 20 GB, 12 + 8, 20 GB मेरे पास मेमोरी है. उसके मैं उसमें कितनी फ्री है, कितना यूज कर रहा हूँ,
सो ये मेमोरी रिलेटेड इंफॉर्मेशन यहाँ भी मिल सकती है अगर आपको वीएमएम नहीं समझ में आता है तो। ओके, सो आयोस्टैट एंड वीएम स्टैट। अब इम्पोर्टेंट चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे, SAR। So SAR stands for System Activity Report. Okay, SAR stands for System Activity Report. As its name suggests, SAR command is used to collect report and save CPU memory input-output uses in Linux like operating system. अब ये क्यों करना है? सी, आप कंटिन्यू तो आपके कंप्यूटर के सामने बैठे नहीं रहोगे, आप जहां भी सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर है उसके सामने नहीं बैठे होगे, आपके पर्टिकुलर एप्लीकेशन रनिंग्स होंगे, एग्जीक्यूट हो रहे होंगे, तो आपको हर 10 मिनट या वी कैन से दैट हाफ आवरली मंथ आवर बेसिस पे या वी कैन से दैट डे बेसिस पे आपको बैकअप लेना चाहिए कि आपके रिसोर्सेस क्या कर रहे हैं। ओके, आपके रिसोर्सेस मतलब मेरे पास 4 CPU, उसमें 4 CPU के 4 CPU फुल हो रहे हैं क्या, मेरे पास 12 GB ऑफ रैम है, ये पूरी की पूरी फुल हो रही है क्या, या समथिंग कि इसमें कम है, स्पेस कम है, स्टोरेज कम है। सो लाइक दैट इंफॉर्मेशन, मतलब इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग CPU, इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग अ मेमोरी, इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग इनपुट आउटपुट यूसेज, ये पूरी इंफॉर्मेशन अगर चाहिए तो आपको सार इंस्टॉल करना पड़ेगा, सिस्टम एक्टिविटी रिपोर्ट। ये सार क्या कहता है? सार कमांड विल प्रोड्यूस द रिपोर्ट्स ऑन द फ्लाई एंड कैन आल्सो सेव द रिपोर्ट्स इन द लॉग फाइल्स। लॉग फाइल्स में भी रिपोर्ट सेव करके रखता है, ये आपको डिस्प्ले भी करता है। इट विल कलेक्ट द डेटा एवरी 10 मिनट्स एंड जनरेट इट रिपोर्ट डेली। हर 10 मिनट के बाद में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके देता है। ओके, डेटा जो होता है वो 10 मिनट के बाद में कलेक्ट कर लेता है और ये डिस्प्ले भी करता है अगर आप कमांड एंटर करते हैं, एंड लॉग में पूरे दिन का डेटा आपका सेव रहता है। दैट मींस इजीली आपको अंडरस्टैंड होगा कि क्या प्रॉब्लम है, आपकी सीपीयू यूटिलाइजेशन कितना है, आपको एडिशनल रैम लग रही है क्या, हार्डवेयर लग रहा है क्या, लाइक दैट। सो फॉर दैट आप क्या करना है कि सिस्टैट ये एप्लीकेशन इंस्टॉल करना पड़ेगा। apt get install systat, ये ऑलरेडी मैंने किया है बट स्टिल आपको मैं दिखाता हूँ कैसे करना है। sudo apt-get install systat -y, ये आपको करना है, इंस्टॉल करना है। मेरे पास ये मैसेज दिखा रहा है, द पैकेज इज ऑलरेडी इंस्टॉल्ड। ओके, नाउ उसके अंदर जाने के बाद में आपको एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल है जो etc के अंदर डिफॉल्ट्स के अंदर सिस्टैट नाम की है, उसको जाके कॉन्फ़िगर करना है। वहां बाय डिफॉल्ट फॉल्स होता है, उसको ओनली ट्रू करना है, जिसका मैंने फोटो नीचे यहाँ दिखा है। एनेबल इज इक्वल टू ट्रू, आपको उतना ही करना है। सो फॉर दैट वी नीड टू यूज एडिटर vi स्लैश, आइदर वी कैन यूज vi, आइदर वी कैन यूज vim, etc स्लैश डिफॉल्ट, उसके बाद में sys stat, और उसके जाना अंदर जाने बाद में आपको पता है आई प्रेस करना है इंसर्ट मोड के लिए, और इसका जो बाय डिफॉल्ट जो होता है आप, तो ये होता है फॉल्स, आपको उसको कट करके क्या करना है, ट्रू करना है। और उसके बाद में आपको जो राइट क्विट जो चेंजेस है वो सेव करना है और राइट क्विट करना है। सो यहाँ मैं करूँगा नहीं बिकॉज मेरा ऑलरेडी एक्टिव है, सो नो चेंजेस रिक्वायर्ड। सेकंड कर लिया आपने, आपको सिस्टैट नाम की सर्विस रिस्टार्ट करनी है। ओके, जॉब चेक, जॉब आपको कि इसके अंदर क्या दिखा है, मैंने यहाँ फोटो दिखा है कि क्रॉन जॉब में क्या होता है, जैसे हमने क्रॉन बताया था। क्रॉन से क्या आता है, फ्यूचर जॉब से फ्यूचर टास्क, मतलब हर दिन रिपोर्ट जनरेट करना और उसे सेव करना, इसके लिए ये कमांड रन किया है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, अगेन vi/etc cron.d/systat, तो इसके अंदर जाने के बाद में आपको दिखाई देगा 5 -55 10 ऑल रूट कमांड -v dan del। सो इससे वजह से क्या होता है कि एक्टिविटी रिपोर्ट के हो जाएगी, दैट्स इट। और उसके बाद में रिस्टार्ट सिस्टैट करना है, वो कैसे करना है, sudo सर्विस systat और उसके बाद ये रिस्टार्ट, जैसे हमने क्रॉन को रिस्टार्ट किया था ना, सर्विस क्रॉन रिस्टार्ट, वैसे ही इसको रिस्टार्ट करना है, दैट्स इट। अब चेक करना है स्टेटस, तो ये आप रिस्टार्ट को कट करके स्टेटस चेक कर सकते हैं। यहाँ स्टेटस देना चाहिए। ओके, अब इसके लिए 10 मिनट वेट करना पड़ता है आपको, कि जैसे भी सर्विस रिस्टार्ट हो जाएगी तो आपको 10 मिनट
वेट करना पड़ेगा। ओके, तो फिर ये रिपोर्ट जनरेट करता है। ओके, नाउ 10 मिनट, ठीक है, वेट फॉर 10 मिनट्स, देन यूज SAR, SARB, SAR, ओके, सार। तो इसमें डिफरेंस क्या होता है ये मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि इसको 10 मिनट वेट करने के हमारे पास टाइम नहीं है। डन। सो फर्स्ट सी, ये प्रीवाइज पिक्चर है, SAR करने की वजह से ये लिस्ट आउट पूरा इंडेक्स रिस्टार्ट सीपीयू आपके दिखा रहा है, 4 CPU आपके पास है IST, और इसके बाद मेमोरीज दिखा रहा है, यूजर्स इंफॉर्मेशन दिखा रहा है, नाइस की परसेंटेज दिखा रहा है, एवरेज दिखा रहा है, ये पूरा ऑल दिखा रहा है कितनी किसका किसका कितना एवरेज है। हाइपन आर करने की वजह से ये पूरा पूरा मेमोरी रिलेटेड इंफॉर्मेशन दिखाएगा, जितनी भी मेमोरी रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, एंड यूसेज का भी इंफॉर्मेशन दिखाएगा। एंड इसके बाद में बी है, हाइपन आर से मेमोरी है, और हाइपन बी से ये पूरा आई रिलेटेड, मतलब VM रिलेटेड एंड IO रिलेटेड, इनपुट आउटपुट डिस्क कौन सा है, कितना है, TPS टाइम पर सेकंड कितना है, रीड टाइम पर सेकंड कितना है, राइट पर टाइम पर सेकंड कितना है। ओके, सो ये रीड करने में क्या स्पीड है, बिट राइट करने में क्या स्पीड है, ये IO रिलेटेड हाइपन बी से दिखाता है, एंड मेमोरी रिलेटेड हाइपन आर से दिखाता है, एंड इन जनरल सार से ये बेसिक इंफॉर्मेशन लिखा सकते हो। ओके, अब ये इंफॉर्मेशन लॉग्स में भी जनरेट होती है, आप लॉग्स जाके भी चेक करोगे तो आपको वो दिखाई देगा। ओके, so ये बेसिक इंफॉर्मेशन था, और ये बहुत जगह पे यूज किया जाता है। क्यों? बिकॉज एक्चुअली फिजिकली आप प्रेजेंट नहीं होते हो किसी जगह पे, तो आप फिजिकली होते हो तो आप क्या करते हो कि SAR एक्टिव करके छोड़ देते हो, और जैसे भी आप रिपोर्ट बाहर जाते हो तो आपका सिस्टम बाहर जाने के बाद में आफ्टर 10 मिनट्स इट विल रिकॉर्ड द एक्टिविटी कि कौन से प्रोसेसेस क्या यूज कर रहे हैं। तो अगर कुछ प्रोसेसेस आपका CPU बहुत ही ज्यादा यूज कर रहे हैं तो आप उस प्रोसेस को किल कर सकते हैं। ओके, या आप इंटीमेट कर सकते हैं थर्ड पर्सन को, जिसकी प्रोसेस है, जो सॉफ्टवेयर डेवलपर है, उसको बोलना पड़ेगा आपको कि आपका ये XYZ नाम का प्रोसेस है, ये आप बहुत ज्यादा यूज CPU यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, इसको कम करवाओ, देन अदरवाइज आई विल किल दैट प्रोसेस। ये आपको इंस्ट्रक्ट करना पड़ता है डेवलपर को, और उसको क्रिएट करना पड़ता है। सो ये इंफॉर्मेशन कहाँ मिलेगी, ये पूरी पूरी इंफॉर्मेशन आपको सिस्टम एक्टिविटी रिपोर्ट में मिल जाएगी। ओके, सो ये पूरी इंफॉर्मेशन आपको डिस्प्ले हो सकती है। सो दिस इज ओवरऑल अबाउट SAR, दैट मीन्स मॉनिटरिंग रिसोर्स यूसेज। कुछ क्यूरी है? नाउ विल क्लोज सेशन, ये क्लोज कर लेंगे, क्लोज, बिकॉज अभी ओवरलोड हो रहा है, और भी पढ़ा सकते हैं हम, बट ये बहुत ओवरलोड हो जाएगा। आज हम एक दिन में 3 चैप्टर 4 चैप्टर नहीं कवर कर सकते, सो की वजह से ओवरलोड हो जाएगा। ओके, किसी को क्यूरी है, क्वेश्चन है कुछ? अभी ये PDF मैं आपको सेंड करता हूँ तो आपको आइडिया आ जाएंगे एक बेसिक, उसके बाद में आपको पता चलेगा, जब आप प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे तो 1 by 1 आपको स्टेप में से ही पता चलेगा। कोणाला सर क्यूरी असेल तर सर हाँ बोला। सर किसी भी सर्विस की प्रायोरिटी कैसे चेंज करते हैं? नाइस वैल्यू से सी। और सर रीना इससे क्या होता है? रीनाइस से मैं जस्ट 1 मिनट, ये मेरे पास ऑप्शन है, या ये मेरे पास टॉप कमांड है, नाइस और रीनाइस। राइस मतलब जब मैंने टास्क रन किया, एट दैट टाइम सिस्टम ने उसे प्रायोरिटी दी। ओके, अभी ये मैंने टास्क चालू किया, सिस्टम ने उसे प्रायोरिटी दी, भाई अभी प्रायोरिटी कितनी है, टॉप कमांड कहाँ है मेरी, कमांड ये टॉप कमांड है, व्हाट विल बी द प्रायोरिटी, सिस्टम की प्रायोरिटी क्या है टॉप कमांड के लिए, 0। आप यहां दिखाई देगा तो आपको क्या है, 0 है प्रायोरिटी इसकी, तो यहाँ तो नाइस वैल्यू 0 दिखा रहा है, प्रायोरिटी 20 है, मतलब वेरी लेस प्रायोरिटी है उसकी। नाउ वी नीड टू चेंज। ओके, क्या चेंज करना है, वी नीड टू चेंज द प्रायोरिटी ऑफ टॉप कमांड। सो हाउ विल चेंज, बाय यूजिंग नाइस वैल्यू। ओके, ये नाइस तो रीनाइज करके हम क्या कर सकते हैं, उसकी वैल्यू चेंज कर सकते हैं। फॉर दैट आपको PID लगेगा ओनली,
सो टॉप कमांड का पीआईडी क्या है आपका 4100 4100 R 4100 एंटर। अभी नहीं होगा, क्यों? बिकॉज ये सूडो से नहीं है, इट विल जनरेट एन एरर परमिशन डिनाइड। सो फॉर दैट यही टास्क हमें सूडो से करना पड़ेगा। सूडो R टॉप 4108 R। अभी यहाँ मैं प्रायोरिटी चेंज कर रहा हूँ -20। अब चेक करो टॉप की नाइस वैल्यू, टॉप की -20 मतलब क्या होता है? हाई प्रायोरिटी। -20 मतलब क्या होता है? हाई प्रायोरिटी। ये देखो हाई प्रायोरिटी, और ये प्रायोरिटी यहाँ चेंज हो गई इसकी -20। नाइस वैल्यू -20 दिया, दैट मीन इट विल बी ट्रीटेड एज अ हाई प्रायोरिटी, और उसके साथ में वो वर्क में कर्नल को इतना ही बताना पड़ता है कि जो ये जो टास्क है इनकी प्रायोरिटी कितनी है। आइदर इनकी प्रायोरिटी 0 है, इनकी हाई है और लो है। सो उसके हिसाब से क्या होता है, कर्नल ना रिसोर्स एलोकेशन करता है। सो उसके हिसाब से कर्नल रिसोर्स एलोकेशन करने के बाद में ही वर्क कंप्लीट होता है, अदरवाइज नहीं। इज इट ओके? यस सर। एनीवन, एनीथिंग एल्स? प्रतीक, ओवरलोड होतंय का? No. नो, इजी है ना? Yes, sir. ओके ग्रेट. सो इन द टुमॉरो मॉर्निंग, आता आपले चॅप्टर कोणते राहील मी क्विक करतो. सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टॉप रेकॉर्डिंग करतो मी.